everyone, welcome to my channel Your to Manage। आज मैं आई हूँ बॉटल होम से जो अटेंड टेलीसिटेशन कम कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम, जहाँ पे आई एम इनवाइटेड एज अ रिसोर्स पर्सन। Good to each and everyone present here. This is Jabbu Kena, your host for today's program. Who stands for society, backbone of the society, and second go to all the students. TGT Mathematics, श्रीमती इजुम न्यूकर, एक बार जोरदार तालियां इजुम न्यूकर के लिए. And next, I would like to show my regards to the accomplished academics, who is also the highest rank holder within the university, and she is Dr. Anga Padu Nukil, Professor Department of Education. And next, I would also like the coach of Sport Authority of Arunachal Pradesh, my elder brother, Mr. Tagam Kena. जोरदार तालियों के साथ स्वागत भी. And my dear friend, I would like to introduce myself, Mr. Doyong Kena. I am today's owner in charge of this program. Ladies and gentlemen, I warm welcome to all. It's a pleasure to have here today. We are excited to embark on this event to share this special moment. Your presence adds significance to our gathering, and we look forward to fruitful and engaging. Least but not last, हर गली अच्छी लगती, हर एक घर अच्छा लगा, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। अब आए इस सम्मेलन में तो ये आयोजन भी अच्छा लगा। आप सबको इस इवेंट में आप सबको अभिनंदन और स्वागत करते हैं। Thank you so much. Token of love to our honorable chief guest. Please, Makte, come with that. This is Area President Mr. Jongkam Kena, present a token of love to our honorable chief guest, and he is none other than Mr. Ponga Kongo. Kami developda muluk prolog Area President Long Dilikan. Pagir nukin no yol jin red di jo ala anya padu. Kajian आपका जिम anya nuker padu सुंदर ani jum nuker TGT Mathematics. और इसको देंगे हमारा मीनम केना नो योल रेजी हाथ का अन्य ने टोकिनो लोगों का. जिसको मैथमेटिक्स में भी स्पेशली हम देखता है करा लड़का में मैथमेटिक्स बहुत कम है, स्पेशली हम भी एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैथमेटिक्स में जीरो है एकदम, हमको एलसीएम एचसीएम भी नहीं आता है. तो इन द कमिंग डेज इफ टाइम परमिट्स देन I will be approaching you for my further studies. Thank you.
वो देगा। हमारा हैंडसम बेटा जिगर पुलो, दिस इज फॉर रेखा नुकुर, जोरदार ताली से। जब तुम कहना लोकल रूल आईटी रोपाक पंजाब में क्वालिफाई हुआ है। मिस्टर तवांग नुकुर, very नुकुर, thank you. Small token of love to our dearly Aceh Dr. Kamal Kina. तालियों की गड़गड़ाहट की कमी नहीं होनी चाहिए। Master of Science in Nursing, MSc. Token Mr. Miss Token Kena. I would like to call Miss Ria Nukir, Yaju Nukir, Class 12 Humanities. Class 12 Humanities. Sartarba Nukir, Class 12 Humanities. The man who is loving daughter, or I should say niece, Miss Lochak Kena. Gipo Nukir. Kapaya dia berkisah. Sir Jablu Nukir, Class 10. She scored more than 80% in Class 10 this year. So congratulations, Nukir. So, thank you, Anita. Thank you so much. Thank you so much. Thank you to all the resource person. Ajnangononne umbar pado, ajnangononne kakko garpado, kal berdil akunsi, yaranne ngonon berkai, yaranne ngonon rakai, ajnangononne. Aku mukola ojayu, asin kono karo jayu, nonne sember, osum namber, summan namber, nonne sember, namber, namber, ajnaku nonne kumbar pado. Ajnangononne kakko garpado, kal berdil akunsi, yaranne ngonon berkai, yaranne ngonon berkai, ajnangononne. Thank you. Good evening, Naruwa, सभी को most respected सिलोग चीफ गेस्ट बे अजने मोग मक्ते पमा
भाई पूर्ण लोग मन में ओके हम जी नाम लगा मारते हमने रेस्पेक्ट हम जितना ओके मोग डॉक्टर अस्तम में बुन चिन मन भाई पूर्ण लोग माने मन चिन कबीर के दिखे रूम तो लोग लगा बे मन विश्वास पर्सन पे है नाम लगा बे नॉन चिन मन के रेस्पेक्ट हम जितना ओके सेकंड मोग अन्य अंगा बु कलकत्ता और लेम तो अगर मो भाई पूर्ण भाई ऐसे अन्य प्रोग्राम बोल तो बु आज एक वो टाइम मिलने से आ जाएगा ना वो पूर्ण में अगर अपना समझ कर आ गया अन्य नॉम से दिल से थैंक यू ओके सेकंड थर्ड मोगे अन्य इजुम नॉम से मो पूर्ण लोग ही मो तो लोचिन इबरा होगे दम एडवाइजर पे हमला आना में नॉम मो दिल से थैंक यू ओके मुन्गे स्टेट वॉलीबॉल रेफरी अस्तागम बेचिन हांगपांग दादा और ले तो रेफरी बे और में बे ने मो भाई पूर्ण पे मन में बेचिन आलरे ओके हमने अपने मो नारुआ थैंक यू ओके जिलो जो गमी गना स्पेशल वक्त पादो आप आकर हम लोग को आपका शक्ल दिखाया है कल को रास्ता में दिखाई देने से मक्त है मुझ काचन देखो अब सभी पहचानना है वो हम लोग का मक्त है हाँ ओके बे मुनुगे स्टेट रिप्री अस्तागम के हाथ लो है मोगे nyame apu oke naru juga mo organizing committee gadang monuk terlalu loga thank you oke special mo request do oke thank you to Arun Bubi channel media person आपको भी हम लोग बाय फोन से बुलाया अभी ये एक करियर काउंसलिंग एक्टिविटी एक सोशल वर्क है सोशल एक्टिविटी से सोचकर आप खुद से वॉलंटियर कर आया आपको भी दिल से थैंक यू ओके जो वो याद दिगो मोगे आज नातम गदे एबरा गदे नरु मिले थैंक यू सो मच ओके एक एजेंडा तो नहीं है और ऐसे प्रोग्राम में कोई लंबा चौड़ा स्पीकर देने का जरूरत भी नहीं पड़ता जरूरी नहीं है तो तब भी थोड़ा सा मोंगे मैं नाम जानूँ मैं मुल्क आर्या का सोच को हम बता देगा क्यों और किस लिए किया इस स्पेशल हमारा रूमते आर्या मतलब और रूमते यूथ एसोसिएशन सोच ऐसे है कि कहीं ना कई जगह में हर जगह बस्ती में एक ऑफिसर निकलता है मेरा बस्ती में अभी तक ऑफिसर नहीं निकला है क्यों और किस कारण से होता है लेकिन भी मोग रूमते में ऐसे हर घर में जॉब करने वाला है और हर लड़का ग्रेजुएटेड है मैक्सिमम 100 से 95% ग्रेजुएट होकर बैठे हैं अनएम्प्लॉयमेंट होकर बैठे हैं लेकिन भी कंपेयर वो चीज़ में होता है कि एक ग्रेजुएटेड ऑफिसर नहीं निकलता है वो किस कारण से होता है क्यों हुआ है बोलकर आज हम लोग को पता चला है कि आप लोग का ऐसे रिसोर्स पर्सन को बुलाने से एग्जाम्पल हमको देखो हम भी एक जानवर है BSc पढ़ते थे हम साइंस स्टूडेंट था लेकिन मेरा भैया हमको ये बोलता था डॉक्टर पूरा बोला था लेकिन मेरा मेंटालिटी में ये ना कि DN कॉलेज में मेरा दोस्त पूरा चला गया उस पे जाना ये मेंटालिटी हुआ तो अगर हम लोग को ऐसे करियर काउंसलिंग देता तो हम लोग भी आज कुछ बनता था एग्जाम्पल बता रहे हैं इस कारण से ये मुद्दा को लेकर हम लोग का आज का प्रोग्राम यही है और इसमें हम लोग का सोसाइटी और कोई एसोसिएशन ये अदरवाइज फील नहीं करना है कि घूमते बस्ती आदमी लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं सबसे आगे आप जो ये घास को काटने के लिए अब ऊपर से करने से वो घास मरेगा ना नहीं मरेगा उसको पता नहीं लेकिन भी अब जब घास का रूट को कटेगा तब वो घास मरेगा दैट मीन्स अब जब सोसाइटी को आगे बढ़ाएगा बोलने से जब आप अरुणाचल को आगे बढ़ाएगा सोचने से सबसे आगे आप लेवल रोड को क्लियर बनाते हैं दैट इज पॉइंट मतलब रोड जब बस्ती जो क्लियर होता तो मेरा सोसाइटी के लिए काम आएगा मेरा डिस्ट्रिक्ट के लिए काम आएगा मेरा इंटर अरुणाचल के लिए काम आएगा यानी कि मेरा अरुणाचल प्रदेश मेरा रूमते बस्ती में एक IAS ऑफिसर निकलने से मेरा सिर्फ नहीं होगा अरुणाचल का नाम रहेगा IAS ऑफिसर निकलता है अगर एपीएस में सीओ कुछ बन जाता है तो मेरा रूमते का सिर्फ नहीं होगा मेरा अपर सुबनसिरी आएगा मेरा करा सोसाइटी का आएगा मेरा गरगा का आएगा इंटर अपर सुबनसिरी का आएगा ये सोचकर हम लोग ये प्रोग्राम बनाए हैं अदरवाइज कोई नहीं है इसलिए आप लोग को आया है थैंक यू वेरी मच सब नेक्स्ट दिन में जब प्रोग्राम बनाता है हम लोग नियम से भी दूसरा प्रोग्राम बनाता है बस आप लोग कैसे कोऑपरेट करते रहना इसलिए दिल से थैंक यू सो मच से पहले हमारा आज का मुख्य अतिथि ऑनरेबल ZPM बारिनिजो कितने पोंगा कोंगो आप नो जो चागरे में अन्यू को नो non beliau
Ngobrol lo ke namaskar untuk oke room pun bol room kampe siloga felicitation kam career counseling program academic topper and achiever of various fields organized by all Rumte Youth Association. Also, mom ni na we gok nam la ba mo area ka president jomkam ke na secretary ame sama dong boleh tumes yoke rok non executive member with them mo aljabe मैं दो कुंता कुंतों सुनो नुनो बॉक्पान मुगा सिलोग प्रोग्राम सो रिसोर्स पर्सन पे उनके रिलीव ने मुरुगे डॉक्टर तमिल के ना Associate Professor Dreams. Oke, munuga Professor Dr. Anganyukir Padu, Department of Education, Rajiv Gandhi University. Munuga खेल volleyball लोग कोच में रिने और माचल लोग उनके दिलगाम केना और के उनके रिने बे DCT हरियाणा प्रेसिडेंट जोकम केना ये लिस्ट में तो आपके हाथ आमादों कावल माहोके उनके मोके पर मोको कैंपम पादू स्कूल लोग इन्हें रंता को ये एक हम पन्ने ताने को तो एनकरेजमेंट को प्रोग्राम को नमले का भी इनोगे मोके शायद तुम प्रेसर पार तो तापो को Dumputul ko sukca, tapo sukca naman motorcycle ko mobile चालू है, वो करते तब मुझे mobile चालू हो, सुको ना अरे क्या हो गया हम, जाओ ना पुता क्या है, बेटा है, अकेले को नेने पुन्नी mobile दो बिद गया, लोकेशन पूर पता नेने नहीं माला, हम मोटा लग तो, ये हम इनमें living monoreplink दूँ, के पूर पता इचिन हब तो मैं ना पम पूरे दिन आओ काल को आपका बेटा भी आपको लोग दूसरा का आपको ऐसे करेगा मैं जामुन तो उम्र जा हाल है तो मुझे मुझे भी जो मैं वो यहाँ में वो अन्य रो है तो कोई गुनो मेला निगाह की मेला तो आर्गुमेंट करता था आर्गुमेंट में निगाह चुपचाप रह गया हम सोचा हम जीत गया निगा चमन पोस्ट दम एक्चुअली वो निगा डरता नहीं था वो निगा इज्जत के लिए सोचता था वो मां इज्जत को ध्यान सोचता था अरे बुए में तब लोग रे मोगी इज्जत है बच्चा को डर करके मेरा ये हम ना हम मेरा रिकुनो का नून होता है नून होता अभी भी एक बच्चा को नून बिंगो बोलो अभी क्या कुत्ता बोलो हम क्या सुनना पड़ेगा हम जवाब क्यों देगा उनका मेरा लेवल का उम्र में तो डिफरेंस हो गया इसके पीछे मेरा तो हम मिला मुझे ना बैंक पे हम नुनु भी दिन नो तुम दिन नो काम आ बोलो एक्सप्लेन में मैं तो ताका पे लगे ये एक्सप्लेन में तो मां हर उमर अपना मैंने कैलकुलेशन नहीं की हम मिला नुन हर कर के रहते तो इसलिए मोरो अगर आप तो मत हमारा अच्छा है रेस्पेक्ट मावे उसका पता मैंने भी देखा तो घर पे जिन उन्होंने समझा कि हम नहीं है पर लोग रूमते बोलते हैं हम इंतर ऐसे और का बात कर रहे हैं हम रिला रिदो हर जिन अलग है दो इन में उन्होंने
yo chin nentom lari mo deh chin apa ek dua pol kam deh dan ini alle ke mental lah ni ngam ne respect lari pin ba aldo Next we have Miss Jabjun Kena, Jabbar Kena, receiving on behalf of Next we have Mr. Loka Ruri. Next we have Mr. Tabang Nukur. Next we have Miss Ria Nukur, Bachelor of Science in Nursing. Miss Ria Nukur. Next we have Miss Beli Nukur, Master of Science in Nursing, MSc. Miss Beli Nukur. Next we have Miss Kenny Nukur. We have Miss Kenny Nukur. She also did Master of Science in Nursing, MSc program from Bangalore. Next we have Miss Token Kena, Class 12 Humanity. Miss Token Nukur, Token Kena. Next we have Miss Yaju Nukur. Next we have Mr. Lothar Ruri. Next we have Mr. Tarwan Nukur, Class 12 Humanities. Next we have Miss Locha Kena, Class 10. Next we have Mr. Gipo Nukur, Class 10. Mr. Gipo Nukur. Next we have Mr. Jablu Nukur, Class 10. Mr. Jablu Nukur is Miss Kimi Nukur. Miss Kimi Nukur, Class 10. Nazi gitu, kayak nazi nak gitu, nazi gitu jadi, ane ko mereka tahu, ini dah boleh, nazi. Doctor. Good afternoon. सोया तो नहीं ना तो चला है कभी मैं सोच रहा था ये 2:30 का प्रोग्राम बहुत दिन का समय है ना एनीवे लोग आने चीफ गेस्ट वक्त लोगों लोग साथ रिसोर्स पर्सन करते हैं Allah jauh baik dalam लोग अंदरों लोग रूम ते लोग आन करते and वो first of all इनको लोग आलिया गया प्रेसिडेंट को थैंक्स देता हूँ और एक सुविधा दिया है एक जगह दिया है हम लोग को इस बात करने का मैं को लास्ट वीक फ़ोन किया था कि अच्छा ऐसा सब प्रोग्राम कर रहा है आप आके थोड़ा ये को काउंसलिंग दे सकेगा क्या तो वो मन वो तो जस्ट पेशेंट देखता है उसका स्टूडेंट लोग को पढ़ाता है तो काउंसलिंग तो करियर के लिए तो कम काउंसलिंग कभी दिया नहीं तो बोला नहीं आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो बता दीजिए तो हमने वो जस्ट आई विल टेक यू थ्रू मैंने वो लाइफ बहुत लोग नहीं जानता है तो जस्ट लाइफ हिस्ट्री थोड़ा सा बता दूँगा आपका एक दो पॉइंट्स स्टूडेंट के लिए वो जस्ट कर देता हूँ तो वो स्टूडेंट है या तो रहा है या तो रहा है स्टूडेंट कोई स्टूडेंट है 10 पास 12 पास 1 2 3 4 5
ओके ठीक है, ठीक है। और कब रिलेटिव्स आया होगा, कोई भाई बहन आया होगा, देन यू कैन इंफॉर्मेशन पास कर सकता है। तो होकर वो जस्ट मेरा एडवाइस या कुछ टिप्स देने से पहले मेरा अपना जस्ट कहानी थोड़ा बता दूँ। वो भी एक बस्ती से है, वो भी तल मोरे तोलू तक है से आ तो बस्ती में जन्म हुआ है। बस्ती में थोड़ा समय जितना याद है थोड़ा सा भरा हुआ है। और कोके में वो अब मैं कौन सा में था, कौन सा लोग ट्रांसफर रहा तो कौन सा में बैठा है। तो मेरे लिए भी लकी है कि वो आर्किमिशन जैसा स्कूल में पढ़ने को मिला। तो आर्किमिशन उनका तो उनका क्लास 12 तक पढ़ा है। उसके बाद वो उस समय तो उन कोई बताने वाला भी नहीं था, और माँ पिताजी को भी कभी कभी मिलता था वेकेशन में। तो उन जो भी इंफॉर्मेशन है टीचर लोग से या कोई सीनियर लोग जो कॉलेज जाके वापस आता है वो लोग से मिलता था। तो वो जो भी जितना भी एंट्रेंस दिया है हम लोग को ट्राई किया। तो 1992 का बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 20 years now। तो दैट टाइम आना जाना भी मुश्किल था। तो हमारा सेंटर सॉफ्टवेयर डिब्रूगढ़ गुवाहाटी एक समय मुझे याद है हम ये कलकत्ता में भी गए हैं। कलकत्ता बोलो ये था कि लोग एम्स और CMC वेलोर का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो गुवाहाटी तक भी नहीं था। तो मैं और मेरा दोस्त एक आसामीज दोस्त हम लोग इमीडिएटली ट्रेन टिकट लेना पड़ा। तो हम आज बता रहे सबको हम 3rd क्लास ये मैं सीट में गया है। 3rd क्लास सीट उस समय ऐसा होता था कि एक बार नो सीट में बैठ गया नो निकल नहीं सकता है, निकल गया तो कोई और ले लेगा वो सीट। तो गुवाहाटी से लेके कलकत्ता, तो दोज आर एक्सपीरियंसेस विच वी फेस। हम लोग उस समय ऐसा एक्सपीरियंस फेस किया था। और अभी का समय तो बहुत सुविधा है, आपके पास इंटरनेट, उस समय इंटरनेट नहीं था, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और एजुकेशन फेस्टिवल कल परसों एक सुबनसिरी में मैं गया था, तो वहाँ पे भी आपको देखने मिलता है कि सब कॉलेजेस अलग अलग बाहर से कॉलेजेस लोग आता है। तो वहीं पे आपका जो इंफॉर्मेशन चाहिए एंड इवन कॉलेज एडमिशन के लिए भी सब कुछ रेडी है। सो दैट वे दिस लॉट ऑफ चेंज, बहुत सारा चेंज है तब से। और मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम लोग का समय कैसा था और अभी का सुविधा कैसा है। लेकिन देर आर कुछ चीज़ कॉमन है, कुछ चीज़ जो स्टूडेंट लोग को जानना जरूरी है, तो मैं बाद में कह रहा था। आफ्टर दैट वी गॉट हमारा स्टेट में सिलेक्शन हुआ और हमको जिपमर में मिला पॉन्डिचेरी में। तो MBBS वहाँ किया। हम लोग उस समय 2 या 3 स्टूडेंट्स, क्योंकि उस समय कोटा सिस्टम होता था। अभी 4-5 साल से अभी हमारा कॉलेज आ गया, तो वो कोटा सिस्टम चला गया। और एक तरफ लड़की है हमारा, उस समय ओनली 36 हुआ करता था MBBS के लिए। अभी आपका 85 सीट्स है प्रीम्स में। आउट ऑफ 100 सीट्स 15 are from general और another 35 is for non-general. So there is a big change. और इंजीनियरिंग का भी ऐसे मौका आता था।
तो उस समय तो हम लोग का ऑप्शन भी बहुत कम था, हम लोग जानते भी नहीं थे। तो इधर इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर या तो बहुत लोग आर्ट्स लेके IAS, PPSC जो करना है। तो हम पौंडीचेरी चले गए, वहाँ पे MBBS किया है। फिर उसके बाद MBBS खत्म होने के बाद में फिर हम लोग वापस नहीं आ सकते, क्योंकि आप एक बार डॉक्टर बन गया, नाउ यू आर ऑन योर ओन, यू हैव टू, आप डिपेंड नहीं कर सकते पेरेंट्स के ऊपर, तो फिर पढ़ना पड़ता है। तो लकीली हमको वहाँ पे बेंगलोर में MD मिला है, तो ये मैं सेक्रेटरी में। तो दैट वाज ईयर 1999, हम वहाँ पे MD किए। MD करने के बाद फिर सेक्रेटरी उस समय जो मेंटल इलनेस इतना अवेयरनेस नहीं था जो अभी है, तो इसलिए, लेकिन बाहर में बहुत अवेयरनेस है, और स्पेशली बाहर कंट्री में तो और भी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला है। हम जब PG खत्म हो गया, फिर जॉब भी करने लग गए। तो मैं 1 साल डी एडिक्शन सेंटर निमांस का, बेंगलोर निमांस का डी एडिक्शन सेंटर में काम किया। आफ्टर दैट हम लोग का अपॉर्चुनिटी मिला है ऑस्ट्रेलिया में काम करने। तो उस समय भी ऑनलाइन ही एप्लीकेशन होता था, तो ओवर द फोन हम लोग का इंटरव्यू होता था। तो लकीली मेरे दोस्त लोग ऑलरेडी जा चुका था, तो 2003 आई गॉट अपॉर्चुनिटी, तो मेलबर्न में गया। तो वहाँ पे 2003 से 2011 तक हम ऑस्ट्रेलिया में काम किए एज ए कंसल्टेंट। तो टाइम बीतते गए। मम्मी ने तो मुझे सिर्फ 2 साल का टाइम दिया था, अब जाओ लेकिन 2 साल में वापस आना है। लेकिन करते करते फिर टाइम चला गया, पता नहीं। सो आई एम बैक नाउ। 2011 में हम आर के मिशन ज्वाइन किया। आर के मिशन 18 तक मैं वहाँ था, फिर 18 से जब ट्रिम्स हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज खोला, देन आई एम देयर। सो दैट इज माई लोग के लिए स्पेशली जो इवन नॉट ओनली 10-12, इवन फॉर स्टूडेंट्स लाइक छोटा क्लास से ही, जो कोरोना का बाद, कोविड का बाद जो बच्चे लोग मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में लग गया है, तो वो छूटने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, और अभी तक वो चीज़ चल रहा है। तो बच्चे लोग बहुत सारा एडिक्शन आ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज बहुत सारा इम्प्लीकेशन मेंटल हेल्थ में, और इम्प्लीकेशन आएगा। और अभी बहुत सारा ऑनलाइन पढ़ाई है, लेकिन जो स्क्रीन टाइम हम लोग देता है, स्क्रीन टाइम जो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, जो TV हो, जो भी हो, तो दैट इज ऑल्सो देयर हैज़ टू बी सम लिमिट। वो डेट्रीमेंटल होता है बच्चे के हेल्थ पे, इंटेलिजेंस पे, मेमोरी पे बहुत डेट्रीमेंटल होता है। सो दीज आर थिंग्स हमको एज अ पेरेंट, एज अ एल्डर, छोटा से बच्चे लोगों को ग्रूम करना है। हाउ यू टू मेक देम रेस्पॉन्सिबल, कैसे वो लोग को टाइम देना है, एक टाइम फिक्स करना है, और एक समय खेल कूद का, जो माता लोगों ने बोला है, आपका हेल्थ ठीक नहीं तो आप इतना पढ़ के भी इतना फायदा नहीं। सो हेल्थ को पहले बच्चे लोग को एडवाइस देना है, और फिजिकल एक्टिविटी में भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना जितना आप पढ़ाई में दें। सो दिस आर एरियाज वेयर वी हैव टू फोकस, not only on memorizing, not only on this thing. तो मेरा इतना ज़्यादा ये बोलने का नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स लोग के लिए ना, अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, आप एज ए पेरेंट्स आप लोग को
ये मैसेज पास कर सकता है। दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, स्ट्रेस तो होगा ही, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट। तो ये दो चीज़ पे जस्ट एक दो टिप्स है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको लगता है कि स्ट्रेस होना नहीं है ना, लेकिन बात है कि स्ट्रेस तो आएगा ही लाइफ में, कहीं ना कहीं से स्ट्रेस तो आएगा ही। आपका कोई रिलेटिव मर गया, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोई लैंडस्लाइड हो गया, घर टूट गया, तो कहीं ना कहीं से स्ट्रेस आएगा। यू कैन नॉट अवॉइड, दैट इज जनरल फॉर एवरीबॉडी। खासकर स्टूडेंट में आपको पढ़ाई करना है, आपको टाइम वेस्ट करना है, मार्क्स अच्छा लाना है, यू हैव टू एक्सेल, आप टॉप करना है, अदरवाइज आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा सीट नहीं मिलेगा। तो स्ट्रेस आने से भी कैसे उसको टैकल करना है, बिकॉज आइडिया इज नॉट टू अवॉइड स्ट्रेस। स्ट्रेस को अवॉइड मत करो, स्ट्रेस आएगा, जस्ट फेस इट, हाउ यू टेक इट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, और आपको कैसे पता है, कभी कभी पता ही नहीं चलता है ना स्ट्रेस आया कि नहीं आया। तो हम लोग देखा गया है स्टूडेंट बहुत जो आप पास करके कॉलेज में भी चला जाता है, कॉलेज में भी बहुत स्ट्रेस आता है। जो स्टूडेंट्स हैं, यू ऑल्सो कैन रिमाइंड द पेरेंट्स कि उनको टाइम चाहिए। एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन, आपको क्वालिटी टाइम देना है, चाहे वो 1 घंटा भी हो, आधा घंटा भी हो, या 2 घंटा दे सकते हैं। एवरी डे या एवरी अदर डे बच्चे को एक टाइम देना, बच्चे को एक्सप्रेस करने का, कुछ प्रॉब्लम को बात करना, बोलने का एक मौका देना। आप सब कुछ दे दिया, मटेरियल चीज़ सब दे दिया, लेकिन आप बिजी हैं, कोई मीटिंग जितना सकेगा तो जो एक्सरसाइज, जो मॉर्निंग योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज जो भी कर सकता है वो कीजिए। और ये कहते हैं कि दिन को भी नहीं सोना है, आप हाफ एन आवर नैप ले सकते हैं आफ्टरनून को, बट अवॉइड कीजिए जितना हो सके। अभी चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग अनजाने में विदाउट नोइंग बहुत सारा ले लेते हैं। एक दोस्त के घर चला गया और उससे ले लिया, और मॉर्निंग ले लिया, इवनिंग ले लिया, शाम का 8 बजे भी ले लिया। तो चाय, कॉफ़ी, इवन आपका ये पेप्सी में एक कैफीन रहता है जो नींद कम करता है। तो एक बार वो लेने से उससे एटलीस्ट 4-5 आवर्स तक वो आपका ब्रेन को जगा कर रखता है। सो अवॉइड करना है। लास्ट जो है 5 बजे, उसके बाद कोई चाय कॉफ़ी नहीं लेना। अब जूस पी सकते हैं, पानी ले सकते हैं, हॉर्लिक्स वगैरह कुछ ले सकते हैं। और रात के टाइम में आप ज़्यादा स्पाइसी फूड और ज़्यादा मसालेदार खाना और बहुत मीठा खाना, वो सब को अवॉइड कीजिए, तब आपका नींद पे अच्छा रहेगा। और उससे भी नहीं सोते हैं, देन यू कैन टेक ए वार्म बाथ, मतलब गर्म पानी में रात को बिफोर डिनर नहा के, और गर्म दूध ले सकते। सो दीज आर सम टेक्निक्स यू कैन यूज़। आपको नींद का प्रॉब्लम है और स्ट्रेस को रहता है, तो वो कर सकता है। तो खासकर स्टूडेंट लोग के लिए एक हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी रूटीन डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और उठने का टाइम, सोने का टाइम एवरी डे सेम रहना, देन ओनली यू कैन इनकलकेट दिस हैबिट। और हमारा बॉडी में एक ये मैकेनिज्म है, ब्रेन मैकेनिज्म, एक फिक्स वाला, जहाँ ये कहते हैं एक हार्मोन है जो 10-11 बजे वो निकलता है ब्रेन के अंदर। वो क्या है? स्लीप हार्मोन, उसको मेलाटोनिन बोलता है। तो मेलाटोनिन जो है रात का टाइम में एक टाइम निकलता है, और वो टाइम में अगर आपका लाइट ऑन रहता है, आपके सामने मोबाइल रहता है, टीवी रहता है, फिर आपको नींद नहीं आएगी, वो मेलाटोनिन आके फिर चला जाएगा। देन आप 11 बजे पार होने के बाद 12 बजे के बाद से फिर 1-2 बजे तक में नींद नहीं आएगी।
इट इज लाइक कैचिंग ए बस ना, बस को पकड़ना है वो टाइम में, जो टाइम में वो बस आता है उसको पकड़ना है, तो वो टाइम में सो जाना है, नहीं तो आपको अच्छे से नींद नहीं। सो दैट इज अबाउट बेसिक स्लीप हाइजीन। और दूसरा मैं ये बताना चाहता था कि आपका टाइम मैनेजमेंट एज ए स्टूडेंट, आप टाइम मैनेजमेंट का ये 4 डी को याद रखिए। एक होता है कुछ टास्क होता है इम्पोर्टेंट वाला है, कुछ नॉट इम्पोर्टेंट। आप समझ लीजिए, एक इम्पोर्टेंट है, नॉट इम्पोर्टेंट, और एक अर्जेंट है, एक नॉन अर्जेंट। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो कौन सा काम को आप पहले करेगा? तो आपको हमेशा वो जो अर्जेंट है उसी में तो आप लगा रहता है, तो लेकिन अर्जेंट होके इम्पोर्टेंट नहीं होने से आप उसको डेलीगेट कर सकते हैं। आप किसी को काम, जैसे मान लो कल इमरजेंसी आ गई, कल ही आपको टिकट काटना है, कल दिल्ली जाना है, लेकिन आपको पढ़ाई भी करना है, आपको टाइम नहीं है, तो वो टिकट काटने वाला काम किसी को लगा सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन वो जो इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है उसको तो करना ही होगा, आपको ही करना होगा। लेकिन आपको एक चीज़ में, उसमें एक चीज़ में ध्यान दे सकता है, द वन विच इज इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। आपको पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं आया है ना, एग्ज़ाम और 2 महीना है, इसलिए अर्जेंट नहीं है, लेकिन पढ़ाई करना है। तो आपको तो जो अर्जेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है, उसी पे आप कंटिन्यू करते रहने से, लेकिन एक ना एक दिन वो जो अर्जेंट नहीं था वो तो अर्जेंट हो जाएगा ना, एक दिन एग्जाम टाइम आने से अर्जेंट हो जाएगा। सो बिफोर द इम्पोर्टेंट थिंग कम्स टू अर्जेंट लेवल, यू कीप डूइंग दैट, एंड इवन व्हेन वो जब तक आ जाएगा आप रेडी रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मे भी हम लोग एक पावर पॉइंट लेके प्रेजेंट करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ बहुत सारा इधर उधर चला जाएगा नहीं तो। एनीवे, मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये है कि आप टाइम पे सोइए, टाइम पे खाना खाइए। दिस आर वेरी स्मॉल थिंग्स बट इट्स नॉट ईजी। हर दिन सेम टाइम में सोना, सेम टाइम में उठना, इट्स नॉट ईजी। एक्सरसाइज करना, टाइम पे खाना खाना, इट्स ईजी नहीं। तो ये हेल्दी चीज़ है, सिंपल है, तो फॉलो करने से आप बहुत आराम से पढ़ाई भी कर सकेगा, काम भी कर सकेगा, और आपका रिलेशन भी अच्छा से रहेगा। ठीक है, एंड दैट इज मेंटल हेल्थ। आप ये ठीक करेगा, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, आप प्रोडक्टिव रहेगा, आप मेमोराइज ज़्यादा कर पाएंगे। ओके, सो आई कंक्लूड हियर, एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट द रूमते यूथ एसोसिएशन। और रूमते को पहले राइडो बोल के सुनता था, राइडो टीम भी था ना, अभी भी है शायद, तो वॉलीबॉल प्लेयर तो मुझे मालूम है वो अभी जो गाना गए थे। तो मेरा ख्याल से ईटानगर जिला में आपका एक बस्ती का एक प्रोग्राम बना सक रहा है, ये बहुत बड़ा बात है। जैसे विलेज आप लोग एक साथ इकट्ठे होकर एक बच्चे लोग को इनकरेजमेंट दे रहे हैं और अपना मकते हुए इतना, मतलब हम बहुत अच्छा लगा है। वक्त उनको पूरा अपना हाथ से निकाल के दे रहे हैं। ये इससे पता चल रहा है आपको कितना प्यार है, आप कितना बच्चे के ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं, और यही बच्चे कल को बड़ा होके आपका ही सेवा करेगा। ठीक, और हम लोग कभी सेवा करेगा, हम लोग जब बुरे हो जाएंगे हम लोग डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। ठीक है, विद दैट ऑल द बेस्ट। Anak aku juga ani. President John Kena for inviting me, because this is the first time that I'm addressing local people. In fact,
fact, my father, I think most of you might not know who is my father. My father name was, he's late. He has been passed away in the year 2014. And his name was Gambanuke because he got married from a girl who belonged to Namegule, okay, which was earlier in fall under the East Siam district. But now they have been separated, and now our place is, recognized as Lower Siam district. So my mother was from that place, and because of that region, he just shifted there, and I think around maybe for 20 years when he was alive, he just shared with us that it was around 20 years that we could not keep in touch with the family. That is, he could not go to the room there in our region. And that is one of the reasons why, the children, we have 5 sisters, and one brother was there. He also passed away. So now, from my elder brother's side, there are 2 children. One is graduated, and one is he's now in college, James. So both of them, 2 sons, my brother had. So and that is the reason why it was very difficult for me also to know the local people. And when even our village people also, they feel that एक ही नौकरी आदमी है and we also feel like that कि हम लोग ही सिर्फ दुनिया में नौकरी रह गया. We never seen any other नौकरी, okay? So when my father was alive, for few occasions, I've seen my uncle Gamke Nyokkir. I think he has served as a Onchol member also in the media. But now it has been so long that I couldn't see him also. Bura bhi ho gaya na. तो आज देखते हैं तो if you see me now, maybe because if you see my age, 40, just close to 40, okay? So this is a very young age to become a profession. तो आदमी को तो mostly they see that आपका इतना young में आप profession बन गया है ना. But I had my share of struggle. The journey was not very easy, okay? So, but the thing that consistency, because of the consistency and the hard work that I consistently strive for, and then I have done, I think that served me there. And today where I am, it is because of that only. So, it's around 17 years that I'm serving in higher education. University, I just joined in the year 2016. Okay, before that, I completed my graduation from JN College, Pasira. Then my schooling from a very simple government school, that is from Nari, then higher secondary from Telan Government Higher Secondary School. Then after that, I've done my graduation from JN College. Then my PG from Rajiv Gandhi University in the year 2006. And then I completed my PhD in the year 2012 from the same department, that is Department of Education from Rajiv Gandhi University. Okay. And then just immediately after completion of my MA, that is 2006, I got selected as a research fellow in the same department, my alma mater, that is Department of Education. And after serving for 9 months, when there was a regular advertisement for the regular post from the APCS, then after 9 months, I got selected, and my first posting was in the Committee College. So I served for around 2 years in the Committee College. Then immediately after 2 years, I got transferred to JN College, Pasira in the year 2009. And again in 2016, I got here in the university. And the basic reason why I chose to come in the university is that in college we need, political backing too much, okay, for retaining yourself in the one place. And because my husband, he served in the Bombay, it was very difficult for me also to manage with my children. So, and frequently, I was transferred to many other places, so it was difficult for me. Then that, in fact, motivated me to apply for university. And that's how I appeared in an interview in the university and got selected in the 2016 in the university. And since then, I'm working here. तभी सब वही काम कर रहा है ना. तो मेरा यहाँ है कि so far counseling is concerned, mostly counseling is being done by an expert person, a person who is trained in counseling service. So far my qualification is concerned, I cannot say that I can counsel you people, but the basic advice that I can give you, okay? All this advice that I'm intending to give you today will not be based on any books or any any written documents, but based on the life experience that I experienced in these 17 years. ये जो 17 years में हम
a teacher, how I serve, what sort of pattern that I have noticed among the students, ना उसी के बेस पे ना थोड़ा सा कोई शेयर करेगा. And when Junghan contacted me, then he told me that this would be a counseling program, and they are also intending to facilitate certain achiever who has achieved in a different field. And he told me that the target group would be school children. Okay, so the moment that I got to know that the target group would be school children, so the point that I come, that I have prepared, are based on the school children. But while coming here, now I'm seeing that more than school children, I think there are achievers who have already done, even the MBBS also completed, and BSc Nursing, IIT is not a simple thing. I know that cracking IIT is the biggest, toughest thing in the India. And if you see the higher education ranking, entire even at international level also, if you see, we have many number of universities, okay, India. But so far the ranking of higher education, if you will see at a global level, it's IIT which are coming which are with good recognition at the international level. So cracking IIT is not a cup of tea, and I'm really very much impressed with the kind of achievement that our nuclear and parent children have. तो ये भी बहुत अच्छा बात है ना. हम लोग I didn't expect, okay, I have seen some of the Kena तो देखा है BEd में है एक दो है ना, लेकिन कभी नहीं किया. But so far nuclear are concerned, especially for my year, ना हम लोग भी नहीं देखा है. So this is the first time लेकिन मैं husband का सोचा नहीं आज इतना सारा nuclear दिखाई देता है ना. So this is a very good, I would say that precious moment for me. And then like whatever I think most of the whatever the important things that we should have spoken or we should have shared here, major parts has been already covered by our chief guest and my co-resource person also. And I think later on the two other resource person will also share. So being a teacher, what I have seen or experienced, based on that, if you would like me to say or share something with you people regarding how to have a very successful career, okay? So I have certain point in my mind which I would like to share here. And if you see that the government college में तो पढ़ा था different sort of students we get, a different type of personality who comes from a different socio-economic background. कोई बहुत ज़्यादा बदमाश भी होता है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है. Some are very intelligent, some are very dull, okay? But we have to deal with them. And then one pattern that I have noticed among them is that mostly in the Arunachali students, it's not I'm limiting my experience only with a particular community, or mostly I've seen the tribal student. Okay, सबसे पहले क्या होता है? They don't do the self-assessment. Once they close the class, then they will just choose the subject, seeing the friend, whatever thing their friend will choose, they will just get inclined towards that. So that is one random selection of subject. Later on, it becomes a hurdle for their career choice also. So my point here is that the first thing being a student, that what you have to do is that you have to assess yourself. खुद को examine करना है ना. खुद को examine करने क्या करना है? Based on the 2 points. The first thing is you need to know what are your interest area. आपको ये देखना पड़ेगा ना. For suppose till class 10 we get the general education combined, ना? Hindi, English, Science, SSD, and then mathematics. लेकिन ये वो लेता है. But after class 10 is the turning point. Once you cross the class 10, you have to choose the subject which will enable you to choose a career in the future course of action. So my point here is that in order to choose a subject which will really benefit you in the future for selection of a career in that area, first you need to know what are your interests. And interest is not a static entity, rather it's a dynamic thing. Okay? Interest change होता है, ये आप जानना चाहिए ना. But there are certain things which are always linking with a major interest. आप अगल बगल में आपका change होते रहेगा ना, छोटा छोटा change. But the major interest area, it will focus on one consistently in one domain.
वर्क है ना, कोच है तो फील्ड वर्क करता है। आप लोग का जैसे क्लास टेकिंग नहीं होता है, मेरा तो हमेशा फील्ड वर्क होता है। By the way, most respects today's chief guest, một favorite kita ponga, co-resource, anh hanga, Ben Ijum, area president, Abjangam, our lectures, Tukatayam, organizing secretary, Panggil Nyokel, organizing chairman, Munyo Binam, Luna Bakazam do, my thanks to that. क्योंकि second platform लोगों तो पास मोग लगा भी पास से मोंगे के पास achievement हम कोई तो नुनु बजे लोग है लोग सिलो जो resource person ने कुछ नमला वो मास तब के अंदर नहीं मैं कस में भी मेरा भी इस तरह का काउंसलिंग जो आज जो काउंसलिंग करियर रखा है अब जो का द्वारा हम मुझे भी इस तरह का होता तो पहले भी आप तक बोला था ना, मुझे भी वो चीज जगह नौकरी उनको बोला ही वो चीज पढ़ाई लिखा थोड़ा कमजोर नहीं था, ठीक ही था मेरा भी। तो आज क्या हुआ था, मेरा ग्रेजुएशन जो है DN कॉलेज में हुआ 2012 में, तो उसमें एडमिशन लिया BA में, मैं भी हिंदी को लिया था, हिंदी मेजर सब्जेक्ट लेके मैंने ग्रेजुएशन किया था। कोई जानने वाला लोग हिंदी बहुत टफ है तो कोई जाने वाला सैल्यूट किया, बहुत तगड़ा से अब पास आउट किया, तो उसमें मेरा थोड़ा सा दिल से शांति मिला, सुकून मिल गया। उसके बाद जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अकेला आप लोग गधे योगा अगर गधे आओ गधे यो जो भी होता है गधे मतलब अच्छे के लिए होता है, जो भगवान बनाता है, जो अच्छा चीज के लिए बनाता है। नहीं तो 2013 में पुलिस का जब नौकरी दापोरिजो में जब हुआ था, तो उसमें हर एक खेल कूद में मैं एक्सीलेंट ये किया था, फर्स्ट पोजीशन सबको हासिल किया था। लेकिन रिटर्न में भी मेरा ठीक ही था, रिटर्न में उस समय में पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छा होना पड़ता था, तो इसलिए मेरा पुलिस में सेलेक्ट नहीं हुआ था। जो भी हो अच्छा हुआ, क्योंकि मैं भी पुलिस को पसंद नहीं करता हूँ। तो अभी आज ये कोच बनने से भी सबका रेस्पेक्ट मिलता है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट से रेस्पेक्ट मिलता है। मेरा यहाँ बेटा हुआ है, ये स्टेट का अच्छा प्लेयर है वॉलीबॉल का, तो ये लोग से रेस्पेक्ट मिलता है, हर जगह में साथ बोलता है, तो बहुत खुशी होता है। तो अभी मैं अगर आवता जो तो मोनू नमने हमारे का कैरियर काउंसलिंग जो नमो हर बच्चे को अच्छी पा मोनू का तो लगा जस्ट मो पोजीशन ऐसे है इतना में आया है, इन मोनू काउंसलिंग जिला मानू ये करेगा सोचता है, तो आप लोग उसको कोर्स करना पड़ता है। मेरा कोर्स बहुत सिंपल है, अगर आपको ये कोर्स करेगा सोचने से आप मेरा यहाँ में वो पूरा फुल नहीं बता सकेगा। सबसे पहले मैं BPN किया हूँ, BPN करने के बाद मेरा स्पेशलाइज वॉलीबॉल में किया हूँ, वॉलीबॉल स्पेशलाइज करने के बाद NIS करना पड़ता है। NIS जो है 1 ईयर का, आजकल 1 ईयर हो गया ग्रेजुएशन करने के बाद। पहले तो NIS 6 मंथ तक करता था, अब क्लास 10 पास करने से भी NIS कर सकता था, लेकिन आजकल ग्रेजुएशन कंपल्सरी हो गया। तभी मैं खेल कूद के बारे लोग जब बोलो नो फिजिकल मेंटल रूप लगे, और जो बुजुर्ग लोग हैं ना, बड़ा लोग को भी मैं एडवाइस देना चाहूँगा। हम लोग का प्रॉपर एक्सरसाइज करने से क्या होता है, क्या बेनिफिट है पता है? प्रॉपर एक्सरसाइज करेगा तो हमारा लाइफ स्पान जो है 50 इयर्स का डिफरेंस होता है, 15 इयर्स। देखो सोचो, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें तो 15 इयर्स का डिफरेंस रहेगा। ऐसे नहीं कि हम लोग ऐसे खाया पिया सोया ऐसे दिन गुजरते गया, हमारा बेकार चला गया, हमारा एक्सरसाइज नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हमेशा एक्सरसाइज करो। अगर योगा करेगा बोलने से भी आप एक जगह दोनों मैं सिखा दूंगा, मैं योगा का भी मास्टर हूँ। आपको फिजिकल सिर्फ योगा बोल के नहीं है, आप जो भी जनरल एक्सरसाइज, जनरल फिजिकल एक्सरसाइज जो भी सीखेगा बोलने से मेरा पास आ सकता है। 24/7 आपके लिए समक्ष हूँ। तो इसलिए मेरा तो वही सिर्फ काउंसलिंग रहेगा, आपको एक्सरसाइज सिखाएगा, योगा सिखाएगा, आप लेकिन जगह ढूंढना है, क्योंकि मेरा पास कैपेसिटी नहीं कि आपको हम ऐसे जगह में ले जाए कोचिंग क्लास बोल के आपके लिए हम सुविधा उपलब्ध कर दें, ऐसे तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिजिकल सपोर्ट कर सकता हूँ। विद दिस थैंक यू सो मच।
Bisi macam ngo agom jam jeka mai. Okay, nunam one more thing sentu mom jo boka jinam laga ba. Thank you so much and thank you. अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट अभी मतलब जो बोलते हैं ना लास्ट में जिसको रखते हैं वो बहुत खास वाला होता है। तो अंजी इचू न्यूकर जी आप आइए, आप भी कुछ चंद शब्द आपके द्वारा हमारे श्रोतागणों के लिए कुछ। Good evening, one and all, respected chief guest, resource person, organizing committee, and dear brother and sister. I am Srimati Iju Nyongkir. I did my graduation from Vedanathu Government College, where I was born and raised. MSc in Mathematics from Rajiv Gandhi University. Currently, I am serving as a TGT Mathematics in Government Higher Secondary School, Sagari. First of all, I would like to thank organizing committee for inviting me as a resource person. You people are doing commendable job. Salute है आप लोगों को, हाँ, बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है। I feel honored to stand before you and share my experience and to witness inspiring success story of intellectual resource person. Dear brother and sister, those who are in class 10 or whose relatives are in class 10, please hear me out. Class 10 is a very important time for every student. Since it is the initial stage which decide कि आप फ्यूचर में जाके क्या बनेगा या फिर आप क्या कर सकता है। लास्ट टाइम मेरा साथ एक बहुत बड़ी इंसिडेंट हुआ। लास्ट ईयर आई आस्क्ड वन स्टूडेंट कि आप कौन सा स्ट्रीम चूज करने वाला है, जैसा हम लोग प्रेसिडेंट सर बोला है ना, तो वो हमको बोला, स्टूडेंट आंसर दिया मैडम कॉमर्स, क्योंकि मेरा दोस्त कॉमर्स में जा रहा है। अनदर स्टूडेंट आंसर साइंस, क्योंकि मेरा पेरेंट्स चाहता है हम साइंस में जाओ। ये सुन के हमको बहुत दुख लगा, क्योंकि दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे टू चूज योर स्ट्रीम। व्हाइल चूजिंग स्ट्रीम यू शुड सी कि आपका इंटरेस्ट कहाँ में है। जैसे हम लोग का रिसोर्स पर्सन अना दीदी बोला है, यू शुड सी वेयर इज योर, आपका इंटरेस्ट कहाँ में है, आपका एप्टीट्यूड कहाँ में है, एंड इन विच स्ट्रीम यू कैन डू एक्सीलेंसी इन फ्यूचर। ओके, एंड आई थिंक दैट आफ्टर क्लास 10 one must take study very seriously because class 10, 11, 12, graduation, post graduation is a very crucial time for a student. अगर आप ये समय में dedicatedly hard work करेगा तो definitely you will have brighter future. See, I am not saying कि आपको 24 hour पढ़ना है. If like you must take active participation in co-curricular activities too, okay? If you want to make future in sport, music or say business, it is up to you. Go for it. लेकिन अगर आपको पढ़ाई से ही अपना future secure करना है, that at least each day you have to make 3 to 4 hours study routines. And during that routines, if anybody of your relatives, friends बोलेगा चलो गेम खेलेगा, चलो घूमने जाएगा, you should say no. आप जो ये 3 to 4 आवर्स का स्टडी रूटीन बनाया है, आप उसको एकदम पढ़ाई में ही दीजिएगा, ठीक है? Moreover, I feel after class 10, one should not even waste your vacation. आप जो जैसे ही आपका एकेडमिक सेशन खत्म होगा ना, जैसे ही आपका एकेडमिक सेशन खत्म होगा, at that very moment you should start preparing for your entrance examination. Suppose you are in a class 10, तो class 10 वाला आप वेकेशन में क्या प्रिपेयर कर सकता है? डिप्लोमा, ITI, A&M नर्सिंग, if you are interested. और अगर if you are in a class 12, if you are a PCB student, you can prepare for NEET. If you are PCM student, you can prepare for JEE. And if you want to take admission in BA, BSc, BCom, you have to appear in CUET exam. Does anybody know what is the full form of CUET? आपको पता है? अभी नया है, बहुत important है. CUET stand for Common University Entrance Test. ये all over इंडिया में कंडक्ट कराया जाता है और आपका मेरिट बेसिस के ऊपर में आपको जो है रिनाउंड यूनिवर्सिटी और कॉलेज इंडिया के अंदर में आपको मिल जाएगा, ओके? एंड दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, देखिए आपका जनरेशन में आप लोग प्रिविलेज है, इंटरनेट, मोबाइल, बहुत मतलब इसका आप एडवांटेजेस यूज करके आप घर बैठे बैठे ही बहुत सारा इंटरव्यूज के बारे में आप जो पता लगा सकता है। आप घर बैठे बैठे जो भी आपको बनना है उसको वेबसाइट में जाइए, ठीक है? आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू का नोटिफिकेशन आया है,
या आने वाला है, ठीक है। इवन यू कैन कलेक्ट सिलेबस फ्रॉम द वेबसाइट। आपको सिर्फ इतना करना है, स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है, प्रॉपर रूटीन बनाना है और आपको डेडिकेटली हार्ड वर्क करना है। देखिए हिंदी में कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लाइकवाइज इफ यू वांट टू सिक्योर सक्सेसफुल लाइफ, you have to sacrifice your sleep. You have to overcome distraction, temptation. You have to stay focused until you achieve your goal. So with this note, I would like to end my speech. I wish may all of you have successful future and all the very best for your future endeavor. Once again, I would like to thank organizing committee. You people are doing commendable job and please keep up the good work. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, dear sister. Youth of Rumte village, Mr. Gibon Yukir. Good evening to all. Mo kalau pure kalau anda ada kata tu ini, kalau anda pun jaga-jaga kisah loga mudi kisah loga, aku muka pronoun sauna ini ada kata tu naik. Mo anda ke room tempat dengan voice aku muka pure betul tu naik, kumam den betul betul. Ini cerita subjek pun Hindi में इंग्लिश में किताब लोग पूरा विभाग है मनी अना बगे अवम जिम्ने अवम आर जिम्ने के आओ पर लोग बताने ना को नजर पुतला आधा पूर्ण चिंगें नजर कादू वाला किंग को तो रिमाइंड को मरला अवम को प्योर मरना मंतुबा मोगा अजिदा पुका आया मोरंगा निरुलता ने वो जिलोगा Ida rumah lagi na ngoke makter ponga apa ngoke baru itu serta terka apa baru itu mungkin acuy cokan lah oke jiloga agra udah tunjuk kan otak apa hana oke aja ke resource person beli han ke tapi ini nak mimpi malah jadi oke ngomak tu cina tu ngomcing ngorok pula ayah kopi pidana oke ngomong aja nak ini tu tu student han ke tapi aja ke tapi nunggu jilo जो हलुला अगर किधर नाव किधर तू तुझे कन होता करेगा तो वो काम ने लू का जुचा पिचा लोग यो एमपी दी कोई ना यो कहीं नहीं कोई के भाई पापा तो दुई लोग प्रश्न तुम काई तुम तेरे को कोई ने तू नाम ना जो इंटरी कुन ने तू तेरे को तू मुमा को पेटा को मुमा का गरीब पूरा जो ना मत करी जो जा रहा नहीं का उमर जुम कलो जुम उमर जुम चिलो अन का रत ग्रुप भक्त ग्रुप आला बनो इंची लगा वो ना कुम लगता है। Thank you.